हालेलुया। हम दुआ करेंगे। दुआ करने से पहले हम एक ज़बूर की 2 आयतें गाएंगे। वो है, तेरी नजात दे शौक विच हुंदे बेहोश मेरी जान, तेरे ही को थी खुदा, दिल थी मैं रख दहाई मां, ते उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते होइयां ने फना, कदों जवाब तू कल्लेगा, कदों जवाब तू कल्लेगा, देवेंगा तू तसल्लियां, तेरी नजात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान, चमड़े दी मशक दी मैसा होया है रब्बा मेरा, सुकी हो जेड़ी तूंदे ना, पर मैं न भुलिया तेरा नाम, तेरी नजात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। प्यारे खुदावंद, तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही परवरदिगार, तू ही खुदावंद खुदा। इस वक्त तेरी हजूरी दिले तेरा शुक्र कर दे खुदावंद। हम कलाम हो, सुना भी समझा भी, प्रभु यीशु दे नाम, आमीन आमीन। तो हम बाइबल में से पढ़ेंगे पैदाइश, उत्पत्ति, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना आसमान, खत्म हुआ। आसमान और जमीन, आसमान और जमीन, आसमान और जमीन का बनाना खत्म हुआ, और लिखा है उसका सारा लश्कर भी तैयार किया। तो आज गुजरे समय भी हमने गौर किया था, तो एक बार फिर उसको पढ़ेंगे। कुलसियों की पत्री
کا تیسرا باب اس کی دوسری آیت سے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی، تم مر گئے اور تمہاری زندگی، تم مر گئے اور تمہاری زندگی، مسیح کے ساتھ تم مر گئے اور تمہاری زندگی۔ اس لفظ کو اچھی طرح سے سنو، تم مر گئے، تمہاری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم مر گئے تو ہماری زندگی، جب ہم مر گئے تو ہماری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے۔ اور جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، جب، مسیح پھر سے پڑھو، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، ظاہر، جب ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے تو ساتھ تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ظاہر کیے جاؤ گے۔ ظاہر کیے جاؤ گے، ظاہر کیے جاؤ گے، زندگی ظاہر کی جائے گی۔ اب ہماری زندگی، جیسے سنا تھا آپ نے کہ ہم آسمانی مقاموں میں ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور پھر آج ہم غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہماری زندگی، جب ہم، جس کو ہم نیا جنم کہتے ہیں، تو نیا جنم وہ ہے کہ جو پرانی زندگی تھی وہ، اس کے لیے لکھا مر گئے، مر گئے، مر گئے، ختم نہیں ہوئے، صرف مر گئے اور ختم نہیں ہوئے۔ یہ ایک ایسی موت جو ہم مر گئے تو ختم نہیں ہوئے۔ ہاں، ہم مر گئے، جب مر گئے تو ہمارا جیون، ہماری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ، ہم مر گئے، ہماری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، ہماری زندگی خدا کے ساتھ پوشیدہ ہے، یسوع مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ تب جب یسوع مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، جب وہ آئے گا تو ہم بھی اسی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ جب سورج آئے گا، نکلے گا، چڑھے گا، تو کرنیں سورج کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنایا خدا نے، بنانے کے بعد اس کا لشکر بھی بنایا، جیسے ہر ایک چیز اور ہر چیز کی جگہ، جب پانی بنایا تو پانی کی جگہ، اندھیرا تو اندھیرے کی جگہ، روشنی اور روشنی کی جگہ، کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک چیز جو خدا نے پیدا کی
تو وہ ہر ایک چیز کو خدا نے وہ چیز بھی بنائی اور چیز کی جگہ بھی بنائی، اس کے رہنے کی جگہ بھی بنائی۔ رہنے کی جگہ، جیو اور جنتو یا پانی کے جانور جتنے بھی ہیں، تو مچھلیاں کہاں رہ سکتی ہیں ان کی جگہ بنائی، پکشی کہاں رہ سکتے ہیں ان کے لیے ہوا بنائی۔ تو اسی طرح آدم کے لیے بھی خدا نے سب کچھ بنایا جو، تو اس کے لیے ہم غور کریں گے۔ ایک چیز جو مٹ جانے والی، ایک چیز جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہے گی، ایک چیز ختم ہو جائے گی، ایک چیز رہے گی، ایک دنیا مٹ جائے گی، ایک دنیا کبھی مٹے گی نہیں، ایک زندگی مٹنے کو ہے، ایک زندگی جو کبھی مٹے گی نہیں۔ تو آج ہم پھر پڑھیں گے کہ خدا میں پوشیدگی میں یسوع کے ساتھ ہم بن رہے ہیں۔ تو 2 بتایا تھا پردے، 3، تو آج ہم چوتھا پردہ دیکھیں گے۔ چوتھے پردے کے اندر کلیسیا تیار ہو رہی ہے۔ دھیان سے سنیے۔ پہلے ہم پڑھیں گے 21واں باب، مکاشفہ ریویلیشن باب 21، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے ہم۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ آسمان اور پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے ہماری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ، جہاں ہم بن رہے، تو لکھا ہے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ بس اچھا، تو اب ہم سن رہے ہیں کہ اوپر سے یہ مقدس لوگ اوپر سے آئے۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہم آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، یسوع کے ساتھ خدا میں ہم پوشیدہ ہیں۔ تو لکھا ہے جب وہ اوپر سے دلہن اوپر سے جو آئے گی، شہر مقدس یروشلم جو اوپر سے آئے گا، اوپر سے، تو وہ لکھا ہے خدا کے پاس جو تھا وہ آئے گا۔ اس آیت کو پھر سے پڑھیے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ کس کے پاس سے؟ خدا کے پاس، خدا کے پاس سے۔
یعنی ہم خدا کے پاس تھے یسوع مسیح کے ساتھ، تو جب وہ اترا نیا یروشلم تو لکھا خدا کے پاس سے، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اوپر سے آئے گا۔ جب یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو ہم بھی اسی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ تو دو گروپ ہوں گے، ایک وہ بھی ہوں گے جو زمین پہ ہوں گے، تو یسوع مسیح کی آمد میں ہر ایک کا جسم بدل جائے گا۔ یہ جو باہری جسم آؤٹر مین یہ بدل جائے گا، تو ہمارا جو اندر جیون تیار ہو رہا ہے وہ جیون اور اوپر والا آیا ہوا جیون، وہ یروشلم جو اوپر سے آئے گا، جو یہاں سے اوپر اٹھایا جائے گا، یہ دونوں گروپ ایک ہو جائیں گے۔ جو ہم زندہ ہیں تو ہم مریں گے نہیں بلکہ بدل جائیں گے۔ جیسے آپ نے بہت بار پڑھا اور سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پہ یوحنا، پترس، یعقوب کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ تب جب اس نے یہ سنا تھا لوگوں نے ہماری جلالی صورت کیا ہوگی، کیسی ہوگی، تو یسوع مسیح نے کہا لوگ میرے بارے، تو انہوں نے کہا آپ کے بارے میں کہتے ہیں کوئی نبی ہے، نبیوں میں سے ایک، آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ تو جلدی سے پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا قدوس جو ہے تو ہے وہ۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو نے یہ بات ماس اور لہو سے نہیں کی، آپ کے ماس نے، آپ کے لہو نے یہ نہیں بتایا، بلکہ میرے خدا نے تجھ میں ہو کر بولا ہے۔ یہ گواہی تیری نہیں، میرے خدا کی جو تجھ میں ہو کر کے بولا، تجھ میں ہو کر بولا۔ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو میں بتاؤں گا۔ عبرانیوں پہلا باب لکھا ہے خدا نبیوں کے وسیلہ سے طرح بے طرح، نبیوں کے وسیلہ سے اس نے کلام کیا ہم سے، ہمارے باپ دادوں سے۔ اس کے بعد آخری سمے آیا، وقت آیا، تو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بولا۔ بولنے والا نہ نبی تھا، بولنے والا نہ یسوع ہے، بولنے والا نہ روح القدس ہے، یہ وسیلے ہیں تینوں، انسان کا، یسوع کا، پاک روح کا، اور بولنے والے تین نہیں بلکہ خدا باپ ہے۔ وہی بولتا تھا، وہی بولتا ہے اور وہی بولے گا، اور کسی کو اختیار نہیں، ایک ہی خدا۔ اس لیے لکھا ہے کہ خداوند خدا بولتا ہے، خداوند خدا ہی سب کچھ کرتا ہے، تھرو ہولی گوسٹ، تھرو جیزس، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، انسانوں کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے خدا ہی بولتا ہے۔ تو اب ہم جو غور کر رہے ہیں کہ زمین پہلے بنائی جو، وہ اس لیے بنائی کہ ایک نئی زمین کا نمونہ ہوگا۔ یہ
جو بنی ہے زمین یہ رہے گی نہیں، یہ رہنے کے لیے نہیں بنائی تھی، صرف نئی زمین کا ایک نمونہ تھا۔ آسمان جو بنایا اور بنائے، آسمان جو پیدا کیا، جو پیدا کیے، یہ سارے آسمان جل جانے کے لیے، مٹنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں۔ ڈینیل 12واں باب اس کی 3 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو۔ ڈینیل 3 باب 12 باب اس کی 3 آیت۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند ابد ان آباد تک روشن ہوں گے۔ سنیے، یہ لکھا ہے نئے آسمان میں کیا کیا ہوگا۔ جو نیا آسمان ہوگا نا، وہ کیسا ہوگا؟ یہ والا آسمان جس میں ستارے، چاند اور سورج دکھائی دے رہا ہے، یہ رہنے والا نہیں، مگر جو نیا آسمان آئے گا، جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، جو نیا آسمان آئے گا اوپر سے، تو وہ آسمان ایسا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی خدا کے پاس لانے والے جو لوگ ہیں، وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک وہاں چمکتے رہیں گے۔ فلک، آسمانوں میں سے ایک فلک، اس میں ہمیشہ تک اب تو ستارے ہیں، جب آسمان ہلے گا نا تو ستارے گریں گے، وہ آسمان نہ ہلے گا نہ اس کے ستارے گریں گے، نہ گر سکتے ہیں۔ جو اوپر والے آسمان میں ہوں گے ستارے، وہ ہمیشہ تک چمکتے رہیں گے۔ تو اس لیے نیا آسمان، نئی زمین، جو نئی زمین ہے نا، تو اس میں لکھا ہے جو نئی زمین ہوگی اس میں خدا کی راست بازی، اس میں خدا کی راست بازی رہے گی زمین پر، اور وہ عبدالآباد تک، ستارے عبدالآباد تک، نیا آسمان عبدالآباد تک۔ تو یہ جو زمین ہے مٹ جانے کے لیے، اس کا 3 باب، اس کی ہم پہلے 5ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے، کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے یا ہیں؟ موجود ہیں۔ اگر ہے تو پھر ایک، اگر ہے تو بہت۔ آسمان اتنے ہیں، کاؤنٹ لیس، لا تعداد آسمان ہیں۔ ان کی اونچائی کتنی ہوتی ہے، آسمان سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں، 11واں، آپ
गिनती करेंगे खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म नहीं होंगे। एक एक आसमान में, जो पहला आसमान उसमें भी 12 आसमान हैं। तो वो जो 12 आसमान हैं तो इसलिए है कि पहले आसमान में जो सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, इनकी जगह, और वो जगह 12 जगह होती हैं, जिससे मौसम, असर, गर्मी, सर्दी, सब चीज़ें ये उसी से होती हैं। तो वो उसको कहते हैं, अय्यूब की किताब हम पढ़ेंगे, उसका 38वां बाब, उसकी 32वीं आयत। क्या तुम मिनकत उल बरूज को ये पढ़ नहीं सके, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना, ये फारसी उर्दू मिला करके है। तो यहाँ लिखा है मुनकता, सब सीखो, मुनकता, मुनकता, ये लफ्ज़ सबको आता नहीं है। मुनकता अल बरूज, बरूज, बुर्ज हो तो एक, बरूज हो तो ज्यादा। ये एक साल में 12 किस्म का ये ऑक्सीजन जो होता है चेंज होता है। सूरज की जगह जिसमें से होके गुजरता है वो 12 जगह हैं। चांद के लिए भी 12 जगह हैं, और सितारों के लिए भी 12 जगह होती हैं। सैयारों के लिए सितारे स्थिर रहते हैं, सैयारे घूमते रहते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा समझना हो तो बुर्ज क्या होता है, अलबरूज क्या होते हैं, ये रहने की जगह क्या होती है, तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुन लें। यहोशुआ की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी हम 11 आयत से पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ो। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैत हरून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अजिका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। पहले 10 आयत पढ़ेंगे। और खुदावंद ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबाओन में बड़ी खून रेजी के साथ मैं पता नहीं, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। 12 पढ़ो। ऐ सूरज तू जिबौन पर, और ऐ चांद तू वादी अयालोन में ठहरा रहे। अच्छा, ये बताओ कि सूरज को क्यों बोला कि ठहरा रहे? कहाँ ठहर जा? उस बुर्ज में, इन बुर्जों का नाम है जेबौन में ठहरा रहे। सूरज को बोला जेबौन में ठहरा रहे, जबौन में ठहरा रहे। और 20 घंटे तक सूरज ठहरा रहा। और चांद को क्या कहा? ऐ चांद तू वादिये
अयालोन में ठहरा रहे। वादी अयालून में ठहरा रहे। चांद तू यहाँ ठहर जा, और सूरज को बोला कि वहाँ ठहर जा। कुछ लोग कहते हैं जब सूरज होता है तो चांद दिखाई नहीं देता, तो कुछ कहते जब चांद होता तो सूरज दिखाई नहीं देता। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार आप लोगों ने सूरज को भी देखा और चांद को भी देखा। तो ये सूरज भी मिटता नहीं, चांद भी मिटता नहीं। इनकी 12 जगह, 12 बुर्ज, बुर्जों को कहते अल बरूज, मुनकता अल बरूज, ये जगह है जहाँ ये चलते हैं और वहाँ से इनका गुज़र होता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि खुदा ने कहा कि सूरज को, चांद को, खुदा ने नहीं बल्कि यहोशुआ ने कहा। क्या कभी आपने सुना है कि इससे पहले कभी सुना आपने कि सूरज ठहरा था? कौन से बुर्ज में ठहरा था? ये ने बुर्जों का नाम बताया, नाम बताया। अब तू चल रहा है ना, तो अब तू पहुंचा है उस बुर्ज में जिसका नाम है जैबोन। चांद तू भी जहाँ ठहरा है ना, चल रहा है, तो तू ठहरा है अयालोन में। तो इसका मतलब ये 12 बुर्ज, 12 आसमान हैं। ये अगर आप पढ़ सकें तो 12 राशियां भी हैं, जो मैक्सिमम अक्सर लोग पढ़ते और उसको ऐसा मानते हैं जो राशि कहेगी वो ही सच होगा। तो अगर आप इन राशियों को देखना चाहते हैं, राशियां कौन सी किताब से पैदा हुई या तैयार हुई, ये है पैदाइश की किताब, उनका 49 बाब, उसकी पहली ऐत से आखिर तक। इसमें याकूब के 12 बेटों का नाम है, 12 बेटों का नाम है। आज जो तुला राशि है, तुला राशि सिंह याकूब का जो 5वां बेटा है, यहूदा जो है, उसको यहूदा का नाम है सिंह राशि है। तो ये 12 राशियां 12 बेटों के नाम हैं। आज जितनी टीवी में आप देखते हो तो ये 12 राशियां मैक्सिमम होती हैं। एक एक राशि याकूब के एक एक बेटे के नाम, उसका क्या होगा भविष्य, वो भी बताया याकूब ने। तो इसलिए ये 12 राशियां आसमान में, नए आसमान जो आसमान है, तो उसमें 12 बुर्ज, ये बुर्जों के नाम हैं, जिसमें एक नाम आए सूरज तू जैबोन में ठहर जा। तो इसका मतलब 11 और भी हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि आपने ये 12 नाम पढ़े हैं या नहीं। आप जानते हैं या नहीं। आपने सुना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ 2 क्लास पढ़ा। तो उसके बाद जो इल्मे इलाही, अलमियत, हिकमत, ये जो वचन हैं, उनके द्वारा मैंने बाइबल में से पढ़ा और खुदा मुझे समझा रहा, सिखा रहा है। जैसे मैंने बहुत उदाहरण भी बताई। फॉर एग्जाम्पल,
मन्ना एक किस्म का था जो आसमान से गिरता था इसराइल के लिए। तो सिर्फ इसराइल के लिए गिरता था, मगर इसराइल के बगैर मिली जुली भीड़ भी उसे खाया करती थी। तो आप नोट कर सकते हैं तो करिए। वो आसमान का मन्ना जिसमें 7 किस्में थीं, उसका रंग, उसकी शक्ल एक थी। कुर्सी के ऊपर पाँव नहीं रखना कभी भी। एक थी, वजन एक था, शक्ल एक थी। आपने जरूर पढ़ा होगा बाइबल में से, उसमें 7 तरह की कुव्वत थी। उनमें असर जो था वो 7 किस्म का था। खाने वाले 7 किस्मों के थे। एक वो भी खाया करते थे जो मिली जुली भीड़ जिसको कहते हैं, जिसके लिए उतरता नहीं था, मगर खुदा अपने लोगों को देता था और उनको भी देता था। जो इस्राएल नहीं थे वो उनके लिए भी उतरता था। वो मन्ना, सुन रहे हो ना, वो मन्ना ओनली फॉर इज़राइल, सिर्फ इस्राएल के लिए। तो जो मिली जुली भीड़ खाया करती थी ना, वो इस्राएलियों के वसीले से, इस्राएल के वसीला से वो उनको भी मिला करता था जो मिली जुली भीड़ कहते हैं। तीसरा, जो खाने वाले थे उनमें वो भी थे जो खुदा के मन्ना खाते भी थे, तो नकम्मी खुराक कहते थे। चौथा, वो भी लोग थे जो उनमें खाते थे और वो किस्म जो थी वो थी जो दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाली। 12 बाब जो आप पढ़ेंगे गिनती की किताब का, तो वहाँ लिखा है 12वें बाब में कि मूसा की मुखालफत ऐब जोई की उसकी मरियम बहन ने और उसके भाई हारून ने। तो खुदा को बहुत बुरा लगा कि तुम लोगों ने, अगर तीसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दुनिया भर के इंसानों में से, पढ़ेंगे, और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। पहला हलीम ओनली मोसेस, मूसा। दूसरा हलीम जिसने, मूसा हलीम था, हलीम बना नहीं सका। यीशु मसीह हलीम था और वो ने बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को हलीम बना दिया। इसलिए हलीम में फर्क होता है। एक खुद हलीम होता है, एक हलीम बना देता है। तो मूसा का विरोध जब किया था उन्होंने, पढ़िए, सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमे के दरवाजे पर खड़ा हो हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए
तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मुआमों में नहीं बल्कि ख्वाबों में नहीं बल्कि रूबरू और फेस टू फेस, आमने सामने बस बातें करता हूं। तो तुमने मेरे खादम मूसा के विरोध में बोला ही नहीं, लोगों को भी बुलाया। खुद नहीं बोला, लोगों को भी बुलाया। तो उसको कोड़ हो गया, कोड़ लग गया, और वो कोड़ी रही। कब तक? जब तक खुदा ने उसके गुनाह माफ नहीं किए। तो जो लोगों को भड़काने वाले थे वो भी मन्ना खाया करते थे। आज लोग सवाल करते हैं ना, यार सारे तो बाइबल पढ़ते हैं तो फिर जो इस तरह ने क्यों निकलते हैं? यार सारे बाइबल पढ़ते हैं, वो तो गालियाँ भी कढ़ते ने। यार वो सारे बाइबल पढ़ते, एक कदी कदी शराब भी पी लेंदे ने। वो सारे बाइबल पढ़ते ने, बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद भी करते ने, बड़ा भड़काउंदे भी ने, ये करते वो करते सब। पर याद रखो, बोलो, मन्ने की शक्ल एक थी, वजन एक था, मगर उसमें ताकत जो थी वो 7 किस्म की थी। कितनी किस्म की? 7। वही खाते तो मूसा का विरोध करते हैं, वही खाते हैं तो नकम्मा कहते हैं उसको। मगर याद रखो, जाजक लोग जो काहिन लोग थे वो भी वही खाया करते हैं, मगर वो भी खाते थे, मगर वो बच नहीं सके। मन्ना जिंदा रखता है, बोलो, मन्ना जिंदा रखता है, मन्ना जिंदा रखता है, मन्ना जिंदा रखता है, मन्ना जिंदा रखता है, मगर मूसा को नहीं, मगर हारून को नहीं, मरियम को नहीं, काहिनों को नहीं, आम बुजुर्गों को नहीं, मिली जुली भीड़ को भी नहीं। मन्ना वही था। उसने साबित किया कि जो मुझे सही तौर पे खाएगा वो ऐसा मुकाशफा प्रकाश हासिल करेगा जो यहोशुआ में और कालेब में है। वो जिंदा जाएंगे और कनान अपनी आंखों से देखेंगे, और वही मन्ने की कुव्वत होगी जो यहोशुआ इस्राएल को बादशाहत दिला देगा। हालेलुया। मन्ने का वजन, मन्ने की शक्ल देखने में एक है, मगर मुकाशफा उसमें 7 किस्म का, जो 7 तरह की कुव्वत होती है। तो इसलिए मर जाने के लिए, एक हमेशा रहने के लिए, आउटर में पैदाइश 3:19, तू खाक है, तू खाक में चला जाएगा। पैदाइश 2:17, तू फल खाएगा तो मर जाएगा। और अंदर वाले से कहा, तू खाएगा तो मरेगा। बाहर वाले को कहा, तू खाक से निकला, अंत लास्ट खाक हो जाएगा। आप सुन रहे हो? तो अब ये देखना है
کہ زمین بنائی اس لیے کہ نہ رہے، آسمان بنائے اس لیے کہ نہ رہیں، ہوائیں بنائیں اس لیے کہ نہ رہیں، تمام جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم پھر سے پڑھیں گے رومیوں پہلا باب 22-23 2 آیتیں۔ یہ جو بھی بنا ہے نہ رہنے کے لیے، انسان بنایا گیا تو نہ رہنے کے لیے، جو انر مین اندر والا ہے وہ سدا رہنے والا، یا بہشت میں رہے یا دوزخ میں رہے۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، وہ اپنے آپ کو دنا جان کر، دنا جو آدمی اپنے آپ کو مانے گا کہ میں دنا ہوں، اصلی بے وقوف ہی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے اصلی بے وقوف؟ کون اصلی بے وقوف؟ ایک بے وقوف نے کہا، اس کو کہتے ہیں بے وقوفوں کا بادشاہ، جیسے عملیوں کا بادشاہ، جیسے تو اس نے کہا میری فصل بہت ہوئی، انکم آمدنی بہت ہوئی تو بہت خوش ہوا، پرانی جگہوں کو ڈھا کر نہیں بناؤں گا، سب مال کو جمع کروں گا، تو میں اپنی جان سے کہوں گا آئے میری جان، کھا اور پی اور برسوں تک زندہ رہے گی، کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ایک نا زمیندار سی، ایک ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। تو ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। تو ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। تو ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ बेवकूफ़ों का बादशाह, एक ही आदमी है जो बेवकूफ़ों का बादशाह। क्या कहता है वो? कहता है मेरी जान खा पी बरसों तक ख़त्म नहीं होगा। तो आवाज़ आई, आए बेवकूफ़। ओ मैं सिख को नहीं कह सकता बेवकूफ़, ना मैं ईसाई को कह सकता हूँ, क्योंकि वो दना है। मैं यहूदियों को, सिख, मुसलमान, ईसाइयों को नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ उसको जिसको ये कहा था आए बेवकूफ़। मैं नहीं बोल रहा कि आप बेवकूफ़ हैं, नहीं। हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने के लिए बहुत चालाक होता है। तो वो कहता है आए बेवकूफ़, आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, तो बता जो बचा हुआ राशन होगा वो किसका होगा? उसको कहते हैं बेवकूफ़ों का बादशाह। तब क्या हुआ? ऐसे एक आपने सुना होगा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, ना मैं किसी का
ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। अब पता चला असलियत क्या है। मैं हूँ यीशु का, बस यीशु है मेरा। तेरी बीवी नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरे बेटे बेटियां तेरे नहीं। ये सच किसने बोला था? जब अय्यूब को कहते थे तेरे 7 बेटे मर गए, तो 3 बेटियां भी मर गई, तेरे मर गए, तेरे। उसने कहा मेरा ना मरा है ना मरेगा, मेरे ऊपर मौत का असर नहीं। जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। सब बोलो एक सच्चाई, जोर से बोलो। इस जगह जितने भी रिश्ते हैं, एक भी पाक रिश्ता नहीं। पाक रिश्ता हो सकता है तो बस पाकी के साथ होता है। हर रिश्ते में राज, हर रिश्ते में भेद, हर रिश्ते में मतलब, हर रिश्ते में ताज्जुब की बात यह है, हर एक रिश्ते में रिश्ता ही नहीं। तेरे मर गए, कहता मेरे नहीं मरते, ना मेरे मरे थे ना मरेंगे। मेरे वो हैं जो मसीह यीशु के साथ और खुदा में पोशीदा हैं। जो मेरे हैं वो कभी नहीं मरते, वो मौत में से निकल चुके हैं और वो जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। बुरा तो मेरे बहुत लगेगा। अगर आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, समझ सकते हैं तो फिर सवाल कर लो आज अपने परिवार से, अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपने इल्म से, अपनी अक्ल से, अपने ज्ञान से। पूछो मुझे क्यों प्यार करते हो, तो वो बताएंगे। शहद की मक्खियां उड़ जाती हैं जब बूंद भी ना रहे, सब उड़ जाते हैं, सब उड़ जाते हैं। पता नहीं आपको क्या लगेगा, मगर मैं आज एक बात का मैंने फैसला किया तो मैं ज़रूर करूँगा। कभी कभी मेरे साथी अजीजा वो इंतज़ार करती है, क्योंकि हम 76 साल के हैं, 1 साल थोड़ा महीने बाकी रह गए 77 के हो जाएंगे। तो मैंने यह सवाल किया कि पता नहीं कब से वो इंतज़ार करती है कौन आएगा, कौन मुझे नहलाए। तो आज से मेरा नहाना बाद में होगा, पहले मैं उसको नहलाया करूँगा। कैसे समझोगे मुझे मालूम नहीं, क्या समझोगे ये भी नहीं मैं बता सकता। ये अपनी अपनी अकल है। मान लीजिए 1 करोड़ आदमी होता है, जन्म लेता है, तो जो पिछली बार करोड़ों लोग थे आज भी करोड़ों लोग मौजूद हैं, आने वाले दिनों भी करोड़ों लोग होंगे। पहले आदम से लेकर आज तक एक आदमी
दूसरे आदमी की अक्ल का ना था, ना है, ना हो सकता है। हर एक की अक्ल फर्क होती है। तो इसलिए दना, अपने आप को जो दना मानता है वो बेवकूफों का बादशाह होता है। तो सवाल आता है, जेड़ी असी इकट्ठी हाँ कर दे, कौन सांभेगा 10 पल के। यह जमीन तो वही है, मालिक आते हैं, मालिक चले जाते हैं, मालिक रहेगा कोई नहीं। जमीन भी नहीं रहेगी तो मालिक कहाँ रहेगा। तो इसलिए अजीजों, इस सच्चाई को समझो, कभी अपने आप को दना समझो। वही बेवकूफों का बादशाह है जो अपनी अकल पर भरोसा रखे, अपने ज्ञान पर भरोसा रखे। मुबारक वही होता है जिसका भरोसा खुदावंद खुदा होता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आगे, दना जताकर अपने आप को वो बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को जो फना नहीं होता, वो जलाल जो फना नहीं होता, को फानी इंसान और परिंदों और चुपाओं, परिंदों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों के साथ सूरत में बदल डाला। उन्होंने अपनी सूरत कीड़े जैसी, मकोड़े जैसी, हाथी जैसी, शेर जैसी, जानवरों जैसी सूरत, आदत, नेचर उनमें बदल दिया। क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूं, कहते थे तेरे थे वो मर गए। उसने कहा नहीं, मेरे ना मरे हैं ना मर सकते, वो कभी नहीं मरेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह में है। हालेलुया। जो तेरे रिश्तेदार हैं ना, यीशु मसीह को कहते हैं बाहर है, तेरे भाई खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार। तब उसने, यीशु मसीह ने कहा, जो बाहर है वो मेरे रिश्तेदार नहीं, जिसने आपको जन्म दिया वो भी नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं, जन्म देने वाली भी नहीं होती, वही होता है। तब उसने कहा, जो मेरे हैं वो ये लोग हैं जो मेरे खुदा की आवाज को सुनते हैं और उनके हुक्मों की पालना करते हैं। और यही मेरी माँ और यही मेरे भाई, यही मेरे रिश्तेदार। आप उन रिश्तेदारों में फंसे हुए हो, आप जानते ही हैं। अब कीड़े मकोड़े जानवरों की सूरत में बदल दिया। अब जल्दी से पढ़िए रोमियो 12वां बाब उसकी 2री आयत से। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, राजा की शक्ल ना बनो, फकीर की शक्ल ना बनो, माँ बाप की शक्ल ना बनो, बहन भाइयों की शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, जानवरों की मानद नहीं, खुदा की सूरत में बदलते जाओ।
ताकि खुदा की नेक ताकि तुम खुदा की नेक और पसंदीदा और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जानवरों की मानद नहीं, अपने बाप आसमानी बाप की मानद बनो। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:48, तुम अपने आसमानी बाप की तरह कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो आज ये जो कुछ हमारी आंख देखती है, जितने पेड़ पौधे मेरी आंख देख रही है, पानी आसमान जमीन तमाम चीज़ों को मेरी आंख देख रही है, ये इसलिए हैं, ये रहेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं। ये रहने वालों का एक नमूना है। ये मिट जाने वाली चीजें, फना होने वाले, जो लाफानी, जो कभी मिटेगा नहीं, उसे खुदा कहते हैं। और आने वाला युग यहान जो है उसमें नया होगा सब कुछ, सब कुछ। इसलिए लिखा जमीन नई, आसमान नया, यरूशलेम शहरे मक़दिस, ये वो आने वाला है। जितने इधर हैं ईमानदार, यीशु मसीह के आने तक होंगे, वो आंख की झपकी में सब बदल जाएंगे। तो जब वो बदल जाएंगे तो जलाली सूरत में बन जाएंगे। जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था तो लोग कहते कोई मूसा कहता कोई एलिया, तो उसने एलिया को भी दिखाया पहाड़ पे और मूसा को भी दिखाया। तो एलिया मूसा यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर थे, तो यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। तो यीशु मसीह का जो जिस्म था वो एकदम बदल गया, उसकी पोशाक बदल गई, वैसे हम भी बदल जाएंगे। तब क्या हुआ? तो पतरस ने कहा हकीकत में ये तीन ही बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। मैंने सोचा कि मैं ऐसे प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि लोगों को तो पहचान नहीं, लोग तो इतने समझ सकते हैं कि सब ही करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, दूसरे दिन के बाद किया करेंगे, पता नहीं कब तक खुदा कहेगा या होगा, क्योंकि लोगों को पहचान नहीं। तब इसमें लिखा है कि नया आसमान होगा, नई ज़मीन, सब पुरानी चीज़ें चले जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। तो उस वक़्त पतरस ने कहा हम 3 डेरे बनाएंगे। कितने डेरे? 3 डेरे बनाएंगे। तो आसमान से जलाल में से आवाज़ आई, यही मेरा प्यारा बेटा है, इसी की सुनो। डेरे 3 नहीं होते, ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। गडरिये नहीं होंगे, गडरिया होगा। डेरे नहीं होंगे, डेरा होगा। कलीसियाएं नहीं होंगी, कलीसिया होगी। तो आंखें बंद करके सिरों को झुकाएंगे। ये खुदा के पर्दे में रहते थे, कलाम के पर्दे में रहते थे, रूह के पर्दे में रहते थे, जिस जगह खुदा इनको बना रहा है। प्यारे खुदावन,
یہ کلام تیرا ہے، تیرے لوگوں کو دے دیا، پہنچا دیا، انہوں نے سن لیا تیرا کلام، بخش دے جیسے آسمانی منا میں 7 قسم کی قوت تھی، الگ الگ طرح کی، آج بھی اس کلام میں مکاشفہ اور پرکاش الگ الگ قسم کا ہے۔ اے خداوند، ہم سب کو اپنی مرضی بنا لے، پربھو یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک تمام ایمانداروں مقدسوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔